کے بارے میں۔ یہ وہ بہادر اور ہوشیار انسان تھا جس نے ہندوستان کی سب سے مضبوط اور سب سے لمبے وقت تک قائم رہنے والی سلطنت یعنی مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ دوستو یہ بات تو ہم میں سے کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ہمارے دیش بھارت پر اگر سب سے زیادہ لمبے وقت تک کسی نے سلطنت کی ہے تو وہ ہے مغلیہ خاندان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سنا خیرت سے۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو کو ریئیکشن دینے آ رہے ہیں RH نیٹورک، ان کا چینل کا نام ہے، ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو بنتے رہیے۔ دوستو بڑی امپورٹنٹ ویڈیو آج کی، بہت بہترین ویڈیو آج کی ہے، بہت پیاری ویڈیو آج کی ہے۔ کیونکہ یہ ہے ظہیر الدین بابر۔ بابر کون تھا اور مغلیہ سلطنت کی سب سے پہلی جو بنیاد رکھی گئی وہ بابر نے ہی رکھی ہے، یعنی کہ انڈیا کو جو فتح کیا تھا وہ ظہیر الدین بابر نے ہی فتح کیا تھا۔ تو آج ہم لوگ ایک دم حقیقت اور سچی کہانی جانیں گے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مغل سلطنت کا بہت کالا سچ تھا، بہت بے رخے تھے، بہت ظلم کرتے تھے، بہت زیادتی کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مغل حکومت بہت اچھی تھی۔ تو آج ہم ایک دم سچی بات رکھیں گے اور ایسی کتاب سے رکھیں گے جو خود ظہیر الدین بابر نے لکھی تھی۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا سچائی ہے، کیا حقیقت ہے مغلوں کی پوری حکومت۔ اور ہم کوشش کریں گے آپ سے مغلوں کی جتنی بھی ویڈیو ہے، کسی بھی بادشاہ پہ ہے، کوشش کریں گے سب باری باری آپ لوگوں کو سامنے رکھیں گے۔ تو اپنی آپ رائے بتائیں ہمیں، اور جتنا ہو سکے مجھے سپورٹ کرنے میرے چینل پہ سبسکرائب کریں، نئے ہوں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، خوب شیئر کریں، اور اس طرح کی تمام ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ میرے چینل پہ آپ کو تمام مغلوں کی، سلطنت عثمانیہ کی تمام اسٹوری، جن کو ہسٹری میں سچ دلچسپی ہے، وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ویڈیو آپ کو ایک سے ایک دیکھنے کو ملے گی کہ جو آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا سچ ایسا کبھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ بہرحال آج ہم جانیں گے ظہیر الدین بابر کے بارے میں، تو ویڈیو دیکھتے ہیں اینڈ تک، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بات ہوگی ظہیر الدین بابر کے بارے میں۔ یہ وہ بہادر اور ہوشیار انسان تھا جس نے ہندوستان کی سب سے مضبوط اور سب سے لمبے وقت تک قائم رہنے والی سلطنت یعنی مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ دوستو یہ بات تو ہم میں سے کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ہمارے دیش بھارت پر اگر سب سے زیادہ لمبے وقت تک کسی نے سلطنت کی ہے تو وہ ہے مغلیہ خاندان یعنی سلطنت مغل۔ مغلوں نے نہ صرف ہمارے دیش بھارت کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا بلکہ ساتھ ساتھ اس دیش کو حد سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بھی بنایا۔ لیکن نہ جانے ایسا کیا ہو گیا کہ آج مغل سلطنت کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو جہاں ایک طرف کچھ لوگ ان کا نام سن کر خوش ہوتے ہیں، وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کا نام سن کر غصہ کرنے لگتے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کی وجہ ایک ہی ہے، وہ ہے ہسٹری۔ کیونکہ مغلوں کے بارے میں ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے ہسٹری پڑھائی جاتی ہے۔ جہاں ایک طرف کچھ لوگوں کو مغلوں کا صرف صاف کردار دکھایا جاتا ہے اور کالے کردار کو چھپا لیا جاتا ہے، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کو مغلوں کا صرف کالا کردار دکھایا جاتا ہے اور سفید کردار کو ان سے چھپا لیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مغلوں کی ریئل ہسٹری بتائیں گے، اور اس ویڈیو میں ان کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پوائنٹس کو رکھیں گے۔ کیونکہ آج کی اس ویڈیو کو ہم جس ہسٹری کی بک سے بنا رہے ہیں اس بک کا نام ہے بابر نامہ۔ یہ وہ کتاب ہے جو خود مغل سلطنت کے پہلے سلطان یعنی بابر نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر بابر کون تھا اور بابر ہندوستان میں کیسے آیا تھا، اور آخر ہندوستان میں آنے کے بعد اس نے اتنی چھوٹی فوج کے ساتھ اتنی مضبوط اور بڑی سلطنت کو کیسے فتح کر لیا تھا۔ ساتھ ہی ہم جانیں گے کہ آخر بابر کا بابری مسجد کے ساتھ کیا کنیکشن تھا۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو بابر کا جنم 14 فروری 1483 میں ایک ایسے شہر میں ہوا تھا جو شہر آج ازبکستان دیش میں پایا جاتا ہے۔ بابر کا پورا نام ظہیر الدین محمد بابر تھا۔ بابر کے بارے میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ بابر کا رشتہ باپ کی طرف سے اوپر جا کر امیر تیمور سے ملتا تھا، جو اپنے دور کا پوری دنیا کا بہت بڑا سلطان تھا۔ وہیں دوسری طرف بابر کا اس کی ماں کی طرف سے اگر رشتہ دیکھا جائے تو اوپر جا کر منگولوں کے سب سے بڑے سردار چنگیز خان سے ملتا تھا۔ یعنی آسان لفظوں میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ظہیر الدین بابر کو امیر تیمور اور چنگیز خان کی بہادری وراثت میں ملی تھی۔ دوستو آپ لوگ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ امیر تیمور کی بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن جب امیر تیمور کا انتقال ہوا تو اس کی سلطنت کو اس کے بیٹوں نے کئی حصوں میں بانٹ لیا تھا۔ انہیں بٹی ہوئی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت ازبکستان کے علاقے میں بھی تھی۔ یہ سلطنت امیر تیمور کی 5 نسلوں کے بعد آ کر ظہیر الدین بابر کے باپ کے حصے میں آئی تھی، اور پھر بابر کے والد کے مر جانے کے بعد یہ سلطنت بابر کے حصے میں آئی۔ جس وقت بابر اپنے والد کی سلطنت کی گدی پر بیٹھا اس وقت اس کی عمر صرف 13 سال تھی، لیکن پھر اچانک سے بابر کے چچا نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بابر کو اپنے چچا سے لڑائی کرنا پڑی اور بابر کے ہاتھوں سے وہ سلطنت چلی گئی۔
गई। उसके बाद बाबर कई सालों तक जंगलों में फिरता रहा। बाबर ने अपनी 30 साल तक की उम्र जंगलों में भटक भटक कर ही गुजार दी थी। बाबर के लिए कई दिन तो ऐसे मुश्किल से भरे हुए गुजरे थे कि बाबर को जंगलों में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुआ करती थी, लेकिन बाबर ने कभी हार नहीं मानी। बाबर को जब महसूस हुआ कि वो अपने वालिद की सल्तनत को वापस नहीं ले पाएगा, तो उसने अपनी सल्तनत को वापस लेने के बजाय अफगानिस्तान को फतह करने का इरादा बनाया। बाबर ने सबसे पहले अफगानिस्तान के कुछ इलाकों को फतह किया और उन इलाकों को फतह करने के बाद हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस वक्त बाबर हिंदुस्तान को फतह करने के लिए हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था, उस वक्त बाबर के पास सिर्फ 13,000 की ही फौज थी और उसका मुकाबला था पठान सल्तनत के सरदार यानी इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी के पास तकरीबन 1 लाख की फौज थी। इब्राहिम लोदी को भी यही लग रहा था कि वो बाबर को आसानी के साथ हरा सकता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की फौज के साथ साथ हजारों की तादाद में हाथी भी मौजूद थे। हालांकि बाबर के पास हाथी भी नहीं थे। दोस्तों, हर चीज बाबर के पास इब्राहिम लोदी के मुकाबले में कम थी। सिपाही भी कम थे, हथियार भी कम थे और हाथी भी नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी बाबर को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो इब्राहिम लोदी को आसानी से हरा देगा, क्योंकि बाबर के पास एक ऐसा हथियार था जो आज से पहले हिंदुस्तान में किसी ने नहीं देखा था और न ही उस जंग से पहले हिंदुस्तान की किसी जंग में वो हथियार इस्तेमाल किया गया था, और वो हथियार था बाबर की खतरनाक तोपें। आखिरकार एक दिन पानीपत के मैदान में ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच घमासान की जंग शुरू हो गई। इब्राहिम लोदी ने जब देखा कि मेरी फौज बाबर के मुकाबले में हद से ज्यादा है, तो उसने अपनी पूरी फौज को एक साथ खुले मैदान में हमला करने का ऑर्डर जारी किया। लेकिन शायद ये इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बाबर ने जब देखा कि इब्राहिम लोदी की पूरी फौज खुलकर एक साथ हमला कर रही है, तो बाबर ने भी अपने सारे तोप चलाने वालों को तोप चलाने का ऑर्डर दे दिया। बाबर के पास उस जंग में तकरीबन 10 तोपें थीं। बाबर की जब सारी तोपों ने एक साथ गोले बरसाना शुरू किए, तो उसकी गरज से इब्राहिम लोदी के सारे हाथी पागल हो गए। तोपों की गरज सुनकर इब्राहिम लोदी के हाथी न सिर्फ उल्टे पांव भागने लगे, बल्कि भागते हुए खुद इब्राहिम लोदी के हजारों सिपाहियों को कुचलते चले गए, जिसकी वजह से लोदी की पूरी फौज में भगदड़ मच गई। बाबर ने जब अपनी दुश्मन फौज के ऐसे हालात देखे, तो अपनी छोटी सी जो 13,000 की फौज थी, उसे एक साथ हमला करने का ऑर्डर दिया। बाबर का यह हमला इतना तेज था कि लोदी चाहकर भी उस हमले को नहीं रोक सका और इस जंग में लोदी खुद भी मारा गया। इस तरह से हिंदुस्तान में बाबर को पहली फतह नसीब हो गई थी और इस जंग को जीतने के साथ ही बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रख दी थी। लोदी को हराने के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर पूरी शान शौकत के साथ दिल्ली में दाखिल हुआ। उस वक्त दिल्ली के सारे किलों पर लोदी की फैमिली का ही कब्जा था, लेकिन बाबर ने इब्राहिम लोदी की मां से इस शर्त के साथ वो किले खाली करवा लिए कि मैं लोदी की फैमिली के किसी भी मेंबर को कुछ नहीं कहूंगा और न ही किसी को कोई जानी माली नुकसान पहुंचाया जाएगा। बाबर नामे में खुद बाबर ने भी यही लिखा है कि वो इब्राहिम लोदी की मां को हमेशा मां का दर्जा दिया करता था और उन्हें मां कहकर ही बुलाया करता था। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर से अपने बेटे इब्राहिम लोदी की हार का बदला लेने के लिए बगावत कर दी, यहाँ तक कि बाबर के खाने में जहर भी मिलवा दिया था। लेकिन बाबर को जब इस बात की खबर हुई, तो बाबर ने उन्हें कैद करवा दिया और उसके बाद कहा जाता है कि कुछ दिनों के बाद कैद खाने में ही इब्राहिम लोदी की मां का इंतकाल हो गया था। दोस्तों, दिल्ली की सल्तनत पर बैठने के बाद बाबर के सामने जो सबसे पहली मुसीबत थी, वो थी मेवाड़ का राजा राणा सांगा, क्योंकि राणा सांगा बाबर की सल्तनत को कबूल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं था। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबर को हिंदुस्तान में राणा सांगा ने ही बुलाया था। राणा सांगा ने बाबर को ये खत लिखा था कि तुम भारत आओ और भारत को जालिम के हाथों से छुड़ा लो, क्योंकि राणा सांगा ये सोच रहा था कि शायद बाबर भी अपने जद्दे अमजद यानी अमीर तैमूर की तरह हिंदुस्तान को सिर्फ फतह करके और इसे लूट करके वापस चला जाएगा और जब लोदी सल्तनत लूट जाएगी तो हम सब राजपूत मिलकर एक साथ एक बड़ी सल्तनत कायम कर लेंगे। लेकिन उसे इस बात का जरा बराबर भी शक नहीं था कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर हिंदुस्तान में ही रहकर सल्तनत करने लगेगा। लिहाजा जब बाबर ने दिल्ली पर सल्तनत करना शुरू की, तो राणा सांगा ने बाबर की सल्तनत से इनकार कर दिया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि राणा सांगा ने न सिर्फ बाबर को भारत में बुलाया था, बल्कि साथ साथ ये भी कहा था कि वो इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर का जंग में साथ भी देगा। लेकिन जब बाबर हिंदुस्तान में इब्राहिम लोदी के खिलाफ जंग कर रहा था, तो राणा सांगा अपने इलाके में ही बैठकर ये सब कुछ देख रहा था और बाबर की मदद नहीं कर रहा था। इस वजह से भी बाबर राणा सांगा से ज्यादा नाराज था। आखिरकार दिल्ली का सुल्तान बनने के 1 साल बाद ही यानी 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच एक जबरदस्त जंग हुई। इस जंग में भी बाबर ने अपनी जबरदस्त होशियारी और तोपों के जरिए से राणा सांगा की फौज को चंद लम्हों में ही हरा दिया था। राणा सांगा को जब ये महसूस हुआ कि वो अब इस जंग में नहीं बच पाएगा, तो वो बीच में ही जंग छोड़कर पीठ दिखाकर भागने लगा। लेकिन बाबर ने राणा सांगा का पीछा नहीं किया। कहा जाता है कि बाबर से हारने के ठीक 1 साल के बाद ही राणा सांगा की मौत हो गई थी और फिर 1-2 साल के बाद ही यानी 1530 में खुद बाबर की भी मौत हो गई थी। दोस्तों, अगर बात की जाए बाबर की कब्र के बारे में, तो क्योंकि बाबर ने ये नसीहत की थी कि उसको मरने के बाद उसके पुराने वतन यानी काबुल में ही दफनाया जाए, तो इसलिए बाबर को उसके बेटे हुमायूं ने काबुल में ही दफनाया था। आज भी बाबर की कब्र काबुल शहर में मौजूद है। दोस्तों, बाबर की मौत के बारे में एक ये कहानी भी मशहूर है कि बाबर का बेटा यानी हुमायूं, जिससे बाबर बहुत प्यार करा करता था, एक बार बीमार हो गया था। हुमायूं को बीमार देखकर बाबर बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था। बाबर हमेशा रो रो कर यही दुआ करता था कि ऐ अल्लाह, तू मेरे बेटे हुमायूं को ठीक कर दे, चाहे तो हुमायूं के बदले में मेरी जिंदगी ले ले, यानी मेरी उम्र भी मेरे बेटे हुमायूं को लग जाए। और कहा जाता है कि अचानक से एक दिन हुमायूं ठीक हो गया। जिस दिन हुमायूं ठीक हुआ, उसी दिन से बाबर बीमार रहने लगा और आखिरकार कुल 47 साल की उम्र में बाबर का इंतकाल हो गया था। दोस्तों, आज के दौर में अगर बाबर बादशाह से जुड़ी कोई चीज सबसे ज्यादा मशहूर है, तो वो बाबरी मस्जिद है, क्योंकि बाबरी मस्जिद बाबर के ही एक अजीम सेनापति यानी मीर बाकी ने बनवाई थी। बहुत से लोग इस गलतफहमी में भी रहते हैं कि बाबरी मस्जिद को मुगलों के पहले बादशाह यानी बाबर ने बनवाया था। हालांकि ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि ये मस्जिद बाबर ने नहीं बनवाई थी, बल्कि बाबर का तो अयोध्या में कभी आने का भी कोई सबूत नहीं मौजूद है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस मुद्दे पर कि
बाबर एक जालिम किस्म का इंसान था या फिर एक रहमदिल, तो इस टॉपिक पर आज भी आपको बहुत सारे अलग अलग राय रखने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। जहां एक तरफ कुछ लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसे रहमदिल बताएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उसे एक जालिम किस्म का इंसान बताएंगे। यानी ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज तक नहीं सुलझ सका है, क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री में जहां एक तरफ बाबर की कुछ रहमदिली का जिक्र आया है तो वहीं कुछ जुल्म का भी जिक्र आया है। बाबर नामे में खुद बाबर ने लिखा है कि जब उसने भारत देश को फतह किया था तो उसके कुछ सिपाहियों ने गरीबों के साथ लूट मार की थी, उनके जानवरों को छीन लिया था, उनका पैसा और माल वगैरह भी छीन लिया था। इस बात की खबर जब बाबर को लगी थी तो बाबर ने न सिर्फ उन फौजियों को सजा दी बल्कि उनमें से कुछ तो ऐसे थे जिन्हें मौत की सजा भी सुनाई गई थी। इसके अलावा जब बाबर ने भारत को फतह किया था तो इब्राहिम लोदी के घर की जितनी भी औरतें थीं और बच्चे थे उनके साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया था, जो इस बात को साबित करता है कि वो एक रहमदिल इंसान था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिस्ट्री में कुछ इसके उलट चीजें भी मिलती हैं। कुछ इतिहासकार ज़हीरुद्दीन बाबर के ऊपर हमेशा से ही सिखों के एक बड़े गुरु को कत्ल करने का इल्जाम लगाते आए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए जरूर यूजफुल साबित हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई शिकायत है या हमारे लिए कोई और एडवाइस है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर दें। साथ ही साथ आप कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताएं कि आप बाबर को किस तरह से देखते हैं, यानी वो एक जालिम किस्म का इंसान था या फिर एक रहमदिल इंसान। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा, हमने जाना आज ज़हीरुद्दीन बाबर की पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी, पूरी सच्चाई, क्या सच था, क्या हकीकत था, वो जालिम था, नेक दिल था, किस तरह का बादशाह था। और ये सब कुछ हमने बाबर की ही अपनी लिखी हुई किताब के ज़रिए से ये वीडियो बनी है, ये समझ लीजिए। दोस्तों सिक्के के दो पहलू होते हैं, सुनी सुनाई बातें बिल्कुल भी मत जाएं। अगर आपको सच्चाई जाननी है, हकीकत जाननी किसी चीज़ के बारे में तो हिस्ट्री को पढ़ें। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको खुद सच पता चल जाएगा क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। और इस वीडियो के जरिए से ये प्रूफ हो गया है, एकदम सच कहानी थी ये। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। और मेरे चैनल अगर नए हुआ करें तो सब्सक्राइब कर लिया करिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।